was a mastermind, the only player to win 4 Man of the Match awards on the trot. मतलब Rahul Dravid said कि on the offside first there is God, then there is Saurav Ganguly. Shane Warne औरा था उस टाइम पे. Nobody has seen that ball कि ऐसी भी कोई bowling करा सकता है. Ravi Ashwin recently said in an interview, previously you had friends in the team, now you have colleagues. 2007 World Cup के बाद he was done. He wanted to retire. Women's team starting में उनके साथ तो ये तक होता था कि men's team की जर्सी उठा के दे दी और पीछे बस नाम बदल दिया. Literally ऊपर से स्टिकर चिपकाया है. ललित मोदी was a mastermind. He amalgamated the two biggest things, cricket और बॉलीवुड को मिला दे. नमस्ते एंड वेलकम टू चाय मित चर्चा. माय नेम इज जगदीश जयप्रकाश गुलाबानी और मैं करण रावल. हमारे यहाँ चाय थोड़ी कड़क और चर्चा एक्स्ट्रा क्रिस्पी होती है. भाई आज बहुत मजा आने वाला है. आज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स है. क्या म्यूजिक? अरे वो तो हो गया ना, पहला एपिसोड ही तो किया आपने. अरे नहीं, थिंक स्पोर्ट्स. ओ फुटबॉल. हाँ वो भी है, लेकिन थिंक लाइक अ रिलीजन इन इंडिया. ओ क्रिकेट. यस, क्रिकेट. But guys, I'm not a huge cricket fan. I know that. But I today can we also- have someone who eats cricket, who sleeps cricket, who breathes cricket, and sometimes becomes cricket. a BTech engineer, a die-hard cricket fan. His reels, fun reels actually, and take on all things cricket is worth a laugh and gets noticed huge on social media. It actually makes people fall in love with cricket. So let's welcome the engineer The cricket fan. and a great personality, Shivang Shrivastava. लोग भूल जाते हैं कि सौरव गांगुली was such a beautiful batter because he was a great captain. 4 Man of the Match लगातार, the only player to win 4 Man of the Match awards on the trot till today. Saurav Ganguly, Oh. the only batter to score the highest runs in a World Cup single match, 183 against Sri Lanka. This is a goddamn World Cup game we are talking about. World Cup game. ठीक है. The only batter to score a century in the ICC Champions Trophy back in 1999, 2000 में जब हम हार गए थे. Yes. His last century came off in a semi-final in a World Cup. So he always peaked when the situation wanted him to peak. Yes. Right? Not just tactically, and he was called the god of the offside. मतलब Rahul Dravid said कि on the offside first there is God, then there is Saurav Ganguly. Because he used to demolish bowlers जब वो offside पे bowling कराते मतलब थे. आज अगर हम देखते हैं ना, जो भी ऑफसाइड प्लेयर्स हैं, जैसे ज़्यादातर लेफ्टीज जो बहुत अच्छे से खेलते हैं ऑफसाइड, वो मैच नहीं कर सकते विथ व्हाट सौरव गांगुली यूज्ड टू बी. Yeah, and this was just like part 1 of his career. हाँ, पार्ट 1. उसके बाद there comes a coach, Greg Chappell. He throws him out of the team, stays out for 9 months. There is a Pepsi ad that comes in where दादा says कि भाई मुझे भूले तो नहीं हो आप लोग. उसके बाद एक आइकॉनिक कमबैक होता है. सिनेमा चल रहा है भाई, हाँ, प्रॉपर. seriously. साउथ अफ्रीका में सीरीज हो रही है. यू डोंट हैव प्लेयर्स, यू ब्रिंग इन सौरव गांगुली. ही मेक्स 51 नॉट आउट. आई मीन हु राइट्स दीज स्क्रिप्ट्स मैन? पूरे टीम में सब फटाफट आउट हो गए. एक बंदा है जो 51 नॉट आउट पे खेल रहा है. देयर इज डेल स्टेन, देयर इज आंद्रे नेल, देयर इज all these world class bowlers bowling at their peak, and then there is this one guy who was not supposed to be Makaya on that Antony भी tour. था. There was Antony भी. Makaya Antony, right? और वो बंदा 51 नॉट आउट बनाता है. India wins that game हाँ. in South Africa. Under Never Rahul happened Dravid. before. Never happened. It has never happened before. Centurion में था वो मैच. और उसके बाद जो रन्स बनाए हैं सौरव गांगुली ने, that is a separate part of his career. He made his highest test score ever after that, 248 not out. Yes. And then when you, और आप ये सोचो, ये कोर जब खत्म होता है उसके बाद आता है भाई VVS VVS लक्ष्मण. लक्ष्मण. उसका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन उसको एक्चुअली वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण बुलाते हैं. It's actually वांगीरप्पू वेंकट साई लक्ष्मण. Yes. So and VVS लक्ष्मण के बारे में, मतलब there's this book that he has written. It's called 281, which was his highest score in Test cricket, जो यही ईडन गार्डन्स वाले मैच में हुआ था 2001 में. In his autobiography, he's written such beautiful things, like टेक्निकली भी अगर आप क्रिकेट सीख रहे हो, अगर आपको सीखना है कि भाई स्पिन को कैसे खेलते हो, तो देयर इज अ होल सेक्शन अबाउट इट. दिस इज हाउ यू प्ले स्पिन. अगर आपको इनसाइडर स्टोरीज चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ स्टोरी व्हेन दे डिड एन अवार्ड्स नाइट जिसमें वीरेंद्र सहवाग को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था. राइट. एंड देन देयर आर स्टोरीज ऑफ हाउ ही यूज्ड टू वर्क एट अ पेट्रोल पंप रात को जस्ट टू सपोर्ट हिज क्रिकेट कोचिंग बैक इन हैदराबाद. And then, VVS Lakshman, like back in the day, he was one of the most studious, people in his family. He was supposed to be a doctor. Wow. His family supported him into cricket. Oh. He
ही इज़ द ओनली बैटर जिसको मतलब आज भी अगर जैसे जब भी ऑस्ट्रेलिया सामने आती है ना तो हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, अरे यार ये भी खेल रहा है, अब ये भी खेलेगा वो। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज़्यादा माइंड माई लैंग्वेज फटती थी तो वीवीएस लक्ष्मण से फटती थी भाई। हाँ? So to put that into context, Yeah. ऑस्ट्रेलिया इंडिया गई थी ऑस्ट्रेलिया टूर पे. इट वाज 1998 और समथिंग 2000 समथिंग. ठीक है, पूरी टीम आउट हो चुकी है, सचिन भी आउट हो चुका है. एक बंदा है, हम लोग हारने वाले हैं गेम, एक बंदा है जो 164 नॉट आउट बनाता है और वो है वीवीएस VVS Lakshman. So and VVS Lakshman has like crazy stories about him. मतलब because he used to bat at number 6, तो भाई वो अपना आराम से शावर आवर लेकर के आता था. ठीक है, कभी कोलैप्स हो जाता था तो ऐसा होता कि सौरव गांगुली इज लिटरली बैंगिंग हिज बाथरूम की भाई बाहर तेरी बैटिंग आ रही है. चार लोग आउट हो चुके हैं, जा चारों आउट हो चुके हैं. और सौरव गांगुली यूज्ड टू से दिस कि भाई ऐसा भी नहीं कि वो क्विक शावर लेके आ गया, भाई वो प्रॉपर ऐसा साबुन लगा रहा है अंदर. तो ही यूज्ड टू टेक हिज टाइम. एंड वीवीएस लक्ष्मण वाज सो फ्रीकिंग टैलेंटेड कि सचिन तेंदुलकर के बाद अगर शेन वॉर्न को किसी ने डोमिनेट किया है तो वो वीवीएस लक्ष्मण है. हाँ, टू अगेन टू ऐड टू दैट, अगर मैं ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ, किसी ने अगर जानना है कि वीवीएस लक्ष्मण ने शेन वॉर्न को कैसा खेला है कभी भी, प्लीज वॉच दैट 281 नॉट आउट इनिंग्स. मतलब उसने ऐसे ऐसे बॉल को ऑफ साइड पे मारा है जो सिर्फ लेग साइड पे इंसान मार सकता है, लेकिन उसने वो घुमा के ऑफ साइड पे भी मारा. His core USP was his wrist. यस. यहाँ पे मतलब अगर आपने यहाँ पे 4 फील्डर लगाए हैं लेग साइड पे और आप इधर बॉलिंग करा रहे हो, नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि मैं ऐसे ही मारूंगा. वो क्या करता था, वो ऐसे ही हिलता था. He used to make way for himself to play inside out. And that is what he did with Shane Warne. He used All to bowl. his innings. He used to bowl from the round the wicket. इधर बॉल इधर आ रही है, दुनिया का हर इंसान इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर ऐसे छक्का मारता था शेन वॉर्न को. ही यूज्ड टू मेक स्पेस, वो इधर आता था, यहाँ से जगह बनाता था और फिर मारता था इनसाइड आउट शॉट. तो टेक्निकली डूइंग दिस यू नीड टू हैव टाइम, you need to have the skill and you need to have that power to take it over the inner circle. Yeah. तो सर्कल इज 30 yards, 30 meters. 30 यार्ड का ये सर्कल है, उसके ऊपर से आपको बॉल को भी निकालना है. एंड टू डू दैट टू द ग्रेटेस्ट स्पिनर द वर्ल्ड हैज एवर सीन, Yes. apart from Muthaiya Muralidharan. You have actually seen Shane Warne yeah. मतलब confused and actually given up. Yeah. मतलब वो पूरा अगर इनिंग्स देखोगे ना आप हाईलाइट, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कैमरा शेन वॉर्न पे जाता है और वो ऐसा करके खड़ा है इतनी गर्मी में, साला ये मेरे को मारे जा रहा है. एंड आप ये सोचो शेन वॉर्न का जो ऑरा था उस टाइम पे, आई थिंक इट वाज हिज फर्स्ट एशेस सीरीज जो उसने एक बॉल ऑफ द सेंचुरी कराई थी मार्क गैटिंग को. दैट इट्स अ स्पिन बॉल, ओके, सो इट नेचुरली टर्न्स, इट डिप्स हियर एंड देन इट टर्न्स दिस वे. देयर वाज दिस बैटर कॉल्ड माइक गैटिंग. ठीक है, वो 1993 का. हाँ, वो खड़ा हुआ है ऐसे, बॉल यहाँ टप्पा खाई है, उसको लगा यार पीछे चली जाएगी, क्या ही करना है. वो बॉल वहां से टप्पा खा के उसके ऑफ स्टंप पे लेके ले जाती है. एंड एवरीबडी इज फ्लैबरगास्टेड, नोबडी हैज सीन दैट बॉल की ऐसी भी कोई बॉलिंग करा सकता है. So I have actually read Shane Warne's book. After his death, I bought that book. ठीक है, and I read the whole thing, and I've read that story of Mike Gatting. Oh, what a beautiful story. And Mike Gatting himself, like till today, he says कि भाई I did not know what happened. ये हुआ क्या था. And just to put things into context, just to prepare for Shane Warne, Sachin Tendulkar had separate practice sessions. पूरी पिच गीली कराते थे, एक साइड पूरा पानी होता था, and he used to practice just on that wet wicket कि भाई तुम मुझे इधर से bowling कराओ, I want maximum turn from this spot so that I can counter him better. And to do that without doing all these trainings, that is what VVS Lakshman was. And it's a crime to not remember VVS Lakshman today, because how Indian cricket is struggling right now in test cricket. If you just had one player like VVS Lakshman, हम हर WTC साइकिल में टॉप पे जाएंगे, आराम से. हम हर टेस्ट सीरीज जीतेंगे, बिकॉज आप नंबर 6 पे बैटिंग करने आ रहे हो, टीम ऑलरेडी आधी थकी हुई है सामने वाली, और उसके बाद आप यू आर लिटरली टॉइंग विद द फील्ड. कैप्टन की सामने ऑपोजिशन कैप्टन को पता ही नहीं क्या करना है. एंड टेस्ट क्रिकेट वो ओडीआई में भी नहीं छोड़ता था. ऑस्ट्रेलिया को तो छोड़ता ही नहीं था वो. ऑस्ट्रेलिया बस सामने पीली जर्सी दिख गई भाई, वीवीएस लक्ष्मण पागल हो जाएगा. ठीक है, ही वाज दैट ग्रेट. एंड आई थिंक ये जो फैब 5 है, ये एक दूसरे से इतने डिफरेंट थे, but still like they complemented each other. Like they were poetry in motion, absolutely. I mean, that era of cricket was poetry. was poetry. मतलब you had no idea. मतलब ये तो Indians है और ये तो batters है. हाँ,
बॉलर्स कितने अच्छे थे हमारे पास, Bowlers मतलब तो जहीर है। खान था, हरभजन सिंह था। हरभजन सिंह का क्या स्टोरी है? अनिल कुंबले अनिल कुंबले, ओ माय गॉड, व्हाट आई एम नॉट अ क्रिकेट फैन और क्रिकेट जैसे इसने बताया मैंने देखा भी नहीं और हम लोग देखता भी 5 नहीं। घंटे बात कर सकते हैं But इसके बारे में। the story that you were just telling about the conversation what having the 5 pillars of Indian cricket team of that era, yeah I can understand कि had everyone had their different strategy, had their different role to play. Yeah, But वही bind कर रही टीम को और वही था एक विनिंग स्पिरिट लेके जाने के लिए. बट यहाँ पे ऐसा नहीं था कि मैं टीम को जिता रहा हूँ. इट वाज लाइक टीम एफर्ट्स. मैं नंबर 1 पे आऊँ कि मैं सेकंड आऊँ कि मैं कोई भी आऊँ. बट एक एफर्ट था कि टीम को जिताना ही है. वहाँ पे वो पर्सनल ईगो नहीं आता था. exactly इट वाज लाइक यू गाइस आर टेलिंग इट्स पोएम इन इट्स मेलोडी इन इट्स फॉर्म. मतलब वहाँ पे एक रिदम चलता था. बट इट वाज एन अनसेड रिदम जो उनके अंदर उनको मालूम है क्या हो रहा है. exactly अरे That's a very that was interesting the story era, that about was the the- era of no PR I would say. Yeah. हाँ, And एब्सोल्युटली। it's just like players just playing out for the love of it और उन्हें कोई चिंता नहीं कि भाई मीडिया मेरे बारे में क्या बोल रही है, ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है. आपस में there was so much camaraderie. Ravi Ashwin recently said in an interview कि previously you had friends in the team, now you have colleagues. Colleagues. So That's a difference. yeah. that in itself is a huge So statement. the Fantastic Five we were talking about of the Indian cricket team of that era. Fab Five, yes. Fab Five, the Fantastic Five. Wow. Interesting. एंड मतलब ये तो सिर्फ बैटर्स है, बॉलर्स तो मतलब और ही Bowlers के अलग बारे में अलग तो ही हमें कहानी है। अलग podcast करना अलग ही Guys, कहानी we है। will have separate episode for like that. he said Irfan Pathan, then there was Zahir Khan, then there was Harbhajan, Anil Kumble जैसा स्ट्रिक्ट बंदा, वो दिखता इतना मतलब ऐसा शांत बंदा है, लेकिन ऑन द फील्ड ही वाज अ मॉन्स्टर. मतलब एवरीबॉडी वुड बी स्कैर्ड ऑफ हिम. Yeah. इवन MSD वाज स्कैर्ड ऑफ हिम. 10 for 74 Yeah. taking all 10 wickets 10 मतलब विकेट्स फॉर क्या ही 74. मतलब आज तक सिर्फ 2 लोगों ने किया है Okay. पूरे crazy. 150 साल की हिस्ट्री में क्रिकेट में 2 लोग ने किया है. नहीं 3 लोगों ने नहीं किया वो actually. अभी उसने अजाज- 2 बार, अजाज हाँ, पटेल एजाज ने पटेल ने भी अभी किया, तो अभी। 3 पीपल. Yeah. Good information for me at least, guys. You'll learn a lot today. I'm sure. Not learn, but I'm the way you're telling as a storyteller, it's मेरे लिए भी बहुत मजा आ रहा है because I'm not a guy who will इसको पहली बार मैं we are friends from past 25 years. Okay. We never discuss cricket when we both are sitting together. I'll tell you very frankly. वरना दो दोस्त लोग बैठेंगे तो क्रिकेट की बात तो होनी चाहिए. Okay. We don't discuss, but today this will be the longest hours I'm sitting and talking about cricket in my entire life. You know why is that? Why? This is something that I've learned from content creation also. Yeah. If I tell you कि सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 18,426 रन बनाए, Hmm. will you be interested? No, right? But if I tell you Sachin Tendulkar made runs when there was no one behind him, Absolutely. when there were 2 billion people putting pressure on him कि भाई अगर आज तू नहीं खेला तो हमारे पास कोई नहीं है. And that guy did it for 30 long years consistently with battling with injuries, battling with controversies, battling with journalism, battling with attention, and battling with himself. with himself. Yes. 2007 World Cup के बाद he was done. He wanted to retire. Vivian Richards called him up and said, listen, you still have 6 or 7 years of cricket left in you. And उस मैच के and उस 2007 वर्ल्ड कप के बाद he went on in 2010 he scored 200 not out in ODI cricket. First time. man on the planet to do that. First man क्योंकि woman पहले थी एक. Oh. Right. And उसके बाद 2011 में he won the World Cup. जो उसके पूरे illustrious करियर में एक चीज बची थी, वर्ल्ड कप जीतना सिर्फ. वर्ल्ड कप जीतना. तो अब ये दोनों स्टोरीज ना बहुत डिफरेंट है. Okay. ये दोनों कहानी सेम है, 18,426 रन बनाए और इतना कुछ दिया इंडियन क्रिकेट को. बट द वे आई सर्व इट टू to you. Yeah. सो वन थिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन इज दैट यू नीड टू सर्व अ बिगर प्लेट. यू नो अगर मैं आपको सिर्फ पनीर पसंदा दे सकता हूँ पर आप पनीर पसंदा नहीं खाते तो मैं आपको दही भी दूंगा, मैं आपको साथ में स्टार्टर भी दूंगा, मैं आपको ये भी दूंगा, वो भी दूंगा. तो दैट इज व्हाट storytelling is all about. Yeah. In order to reach the masses, you need to touch the pulse of everyone. And that's makes it interesting also to listen from you at least about cricket, which is not my favorite topic. Yeah. My top 10 favorite topic में है भी नहीं मेरे को. But still I'm doing a podcast with you today. Yeah. See? That's fun, but it's interesting. हम 80s के बच्चे हैं. हाँ? हम तो एटलीस्ट हैं. हम तो 80s के हाँ, बच्चे हैं. हम आप तो 90s के, हम 90s. तो आपने 90s विटनेस किया है. जी. 2000 क्रिकेट इंडिया एक मिड लेवल टीम थी, ठीक है. एंड जैसे जैसे बढ़ते गए और जैसे जैसे साल बीतते गए तो इंडियन टीम भी थोड़ी इवॉल्व होती गई. तो एज एन फ्रॉम योर परस्पेक्टिव ऑफ द इंडियन टीम इवोल्यूशन कैसा था और आपका एक्सपीरियंस. मेरे को 2
जवाब चाहिए आपसे, आपका एक एक्सपीरियंस एज अ व्यूअर एंड देन एज एन एक्सपर्ट, इफ यू कंपेयर हाउ इंडियन टीम हैज इवॉल्व एंड स्पेशली व्हेन आईपीएल इज इन्वॉल्व राइट नाउ, तो वो मिड लेवल टीम से अभी जो स्ट्रॉन्ग टीम है, तो इसका कंपैरिजन आपके पर्सपेक्टिव से क्या होगा सर? See, I think just to put evolution in Yes, in yes, perspective. So सबसे पहले टेक्निकल एस्पेक्ट पे आते हैं. पहले हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे. True. ठीक है. The way with the kind of resources we had back in 1980s, 70s, Even उस- 1990s. even 1990s, ये रिसोर्सेज थे ही नहीं. ये ना ये ग्लैमर था, ना ये पैसा था, ना ये इक्विपमेंट्स थे, ना इतनी नॉलेज थी, ना इतना एक्सपोजर था, और ना इतना पावर था. और पावर भी नहीं था. राइट. हम्म. तो उस एरा में हमने जो कुछ भी अचीव किया, 1983 वर्ल्ड कप में हर एक प्लेयर को मुश्किल से 1400-1500 रुपए मिले थे. क्या बात कर रहे राइट. उस टाइम ये सैलरी होती थी. हो? ओह, करेक्ट. एट दैट टाइम वुमेन्स टीम का जो एवोल्यूशन है, स्टार्टिंग में उनके साथ तो ये तक होता था कि मेंस टीम की जर्सी उठा के दे दी और पीछे बस नाम बदल दिया. लिटरली ऊपर से स्टिकर चिपकाया है. I have seen that in some movie poster Yeah, Shabash also. Mittu. Yeah, Shabash yeah. सो उस टाइम पे जो क्रिकेट था, सिर्फ इंडियन क्रिकेट की मैं बात करूं, तो ना हम इतना ओवरसीज ट्रैवल करते थे, ना हम इतना मैचेस इस तरीके से कवर होते थे. ब्रॉडकास्टिंग वाज वेरी डिफरेंट. राइट. नाउ दैट यू हैव, अब तो मोनोपोली है भाई ऑलमोस्ट. राइट. पहले ब्रॉडकास्टिंग ऐसा था, दूरदर्शन को पैसे देने पड़ते थे. एग्जैक्टली. दूरदर्शन को पैसे देने पड़ते थे. अब तो करोड़ों की डील होती है. करेक्ट. Scenario has changed now. Scenarios have changed. The way we used to play was, उस era के हिसाब से I still think we were way ahead of its time. Okay. Because 1983 there was a match which I still feel is the turning point of Indian cricket. Was that one game against Zimbabwe when we were 17 for 4. 5. 17 for 5 actually. Right? उसने 5 किसका एग्रेशन में बोला हाँ, took 10 right. का रखी. मेरा एक विकेट कैसे गया? एक विकेट और गया था. So we were 17 for 5, जगदीश. Thank you so much. Sorry. ठीक है. नहीं अरे, और इसमें उनका कोई गलती नहीं है भाई. मैं अपने वीडियो में एक स्टैट फ्लिप कर देता हूँ ना, पूरा कमेंट सेक्शन में Let me tell you why. मतलब ठीक है, because my father has made that, मतलब had already, मतलब he's spoken about that match so vividly and I remember it so vividly कि मैं भूल नहीं सकता. Exactly. That's why. 17 for 5. ठीक है. टर्नब्रिज वेल्स में वो मैच हो रहा था. ठीक है. उस दिन ब्रॉडकास्टिंग की स्ट्राइक थी. ठीक है. द मैच इज नॉट बीइंग कवर्ड. देयर आर जीरो. मैच चालू है, लाइव चल रहा है. मैच चालू. वर्ल्ड कप मैच है भाई. प्रॉपर वर्ल्ड कप मैच चल रहा है. और इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग नहीं है. ठीक है. ब्रॉडकास्ट इंडिया में नहीं, वो वर्ल्ड में वो कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. उस दिन वहां पे कैमरामैन की स्ट्राइक थी. यहाँ ब्रॉडकास्टिंग मतलब कैमरा में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ मैच. रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. मतलब जो बस वहां पे था लाइव, जिसने वो देखा बस उसी ने देखा. There is no record of the There match is no- also. ना nothing. Oh. तो This is interesting facts. Yeah. Like हाँ. this, yeah. there is one journalist, Ayaz Memon sir. He was there, and the way he describes that innings of Kapil Dev coming in at 17 for 5, and then individually he scored 175 runs. Not out. Not out. अकेले बैटिंग विद अ विकेट कीपर, जो, और उस टाइम पे विकेट कीपर्स को बैटिंग नहीं आती थी. ठीक है. वो दे जस्ट यूज्ड टू कीप विकेट्स, और उनको उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी. अकेले वो इनिंग्स खेलना वहाँ पे, इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. मतलब वो इनिंग्स अगर कोई आज भी खेलेगा ना, तो भी उतना ही इंपॉर्टेंस मिलेगा और उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा. राइट. I think the closest that comes to that is recently when Glenn Maxwell played that 201 not out. Yeah. So that was the aura of that. That was the importance of that innings. So we were way ahead of our time even at that stage. Now with the resources that we have now, BCCI has become a powerhouse. IPL has put Indian cricket on the world map. Right. It is the second most lucrative league in the world. $8 billion. After I think EPL. EPL. राइट. NFL और ये सब अभी बाद में आता है. करेक्ट. तो IPL के बाद आते हैं. IPL के बाद आता है. इट इज द In सेकंड the मोस्ट, standing, मतलब वो जो उसका वर्थ है. जो वर्थ है अभी. तो IPL ने क्या चेंज किया है? IPL हैज, एंड द वे इट वाज मार्केटेड, बिकॉज IPL के पहले भी एक आया था ICL, ICL, yeah, Right. Indian Cricket League. But जो कपिल देव ने शुरू किया जो था. कपिल देव ने शुरू किया था. करेक्ट. एंड IPL का फर्स्ट ड्राफ्ट
जो मतलब obviously a lot of credit goes to Lalit Modi मोदी who started it from 2008, but उसका first draft बहुत साल पहले 1993 1994 में अरुण लाल और उनके साथ 2 लोग और थे, उन्होंने प्रेजेंट किया था. बट उस टाइम पे वी डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज टू टेक दिस लीग एंड उसको कुछ ऐसा बनाने के लिए. तो एट कुछ दैट था नहीं. लेवल जो हाँ, आईपीएल गया वो. जो अब आईपीएल है. ललित मोदी was a mastermind. He sort of, क्या बोलते हैं उसे, amalgamated the two biggest things. And he saw the gap India. actually. He Yeah, saw the gap. कि क्रिकेट और बॉलीवुड को मिला देते हैं और फिर लेके आते हैं. और भाई पहला ही मैच इतना खतरनाक हो गया बहुत ना, बढ़िया. IPL 2008. आई स्टिल लाइक रिमेंबर वॉचिंग दैट गेम एट माई हाउस. हम लोग मैच देख रहे हैं. देयर जहीर खान बॉलिंग, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टू एवर प्ले द गेम. ब्रेंडन मैकलम न्यूजीलैंड का बंदा बैटिंग कर रहा है सामने. ही स्लैशेस द बॉल. उसके बैट का आउटसाइड एज लगा है, मिडिल ऑफ द बैट भी लगा है, आउटसाइड एज लगा है, और बॉल गई है पीछे छक्के पे. It's a 6. It's a freaking outside edge. And that one shot, it just revolutionized everything. That you one see. innings actually is revolutionized. उस innings में ब्रेंडन मैकलम 73 balls 158 runs. That was उस पूरे सीजन में उसने वही एक इनिंग्स खेली. पूरे सीजन के बाद उसका टोटल कुछ 200-250 रन बनाए होंगे उसने. बट वो एक इनिंग्स ने, आफ्टर दैट इनिंग्स सौरव गांगुली वेंट ऑन, जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे थे, उन्होंने उसको बोला कि भाई योर इंटायर लाइफ हैज चेंज्ड फॉरएवर. You have no idea what you have done today. And Brendan McCullum today, the way England plays cricket, वो उनका कोच भी है, तो जिस तरह से वो लोग अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं ना, उसको बैस बॉल बोलते हैं. इट कम्स आउट फ्रॉम ब्रेंडन मैकलम्स नेम, बैस मैकलम. तो वो पूरी एक लेगेसी बिल्ड हो गई है ब्रेंडन मैकलम के नाम के साथ. तो आईपीएल ने जो किया है ना, एंड फ्रॉम अ टेक्निकल एस्पेक्ट, वी वर नेवर सो गुड इन प्लेइंग ऑन इन आई थिंक वो तो एक सॉर्ट ऑफ डिग्रेड हुआ है कि पहले हम लोग स्पिन बहुत अच्छा खेलते थे, हम लोग बाउंसियर विकेट्स पे बहुत अच्छा खेलते थे. ऑल दीज लक्ष्मण, द्रविड़, गांगुली, हम सोचते भी नहीं थे यार कि स्पिन कोई एस्पेक्ट भी है. ठीक है, वीरेंद्र सहवाग तो ये तक बोलता है कि मैं तो ऑफ स्पिनर को बॉलर ही नहीं मानता. ठीक है, तो और ये रवि अश्विन ने ही बोला, हमारी टीम वाले ने बोला, because these guys were that good. But to put things into context, Kevin Peterson from England, who is one of the greatest cricketers from England, he actually asked Rahul Dravid during the IPL, ki, bro, how do you play spin? And Rahul Dravid, being Rahul Dravid, he wrote an entire mail explaining ki, this is how you play spin. And then Kevin Peterson came back to India in Wankhede. He demolished Indian spin. Yes, he did right. that. And he credits that innings to Rahul Dravid. So this, I can tell you, spin का वो aspect अब जब आप देखते हो ना, when you see Test cricket and you see our players, गिने चुने लोग हैं, श्रेयस अय्यर, रजत पाटीदार, these guys are the best players of spin right now. थोड़ा बहुत KL Rahul, Rishabh Pant, given the way he bats, but otherwise that armory, even Virat Kohli towards the end of his career, he was clueless against Mitchell Santner and all these guys. क्योंकि वो एस्पेक्ट अब बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गया है. रीजन बीइंग T20 क्रिकेट का जो पूरा एक रेवोल्यूशन आया है, राइट, पेशेंस हैज सफर्ड अ लॉट, राइट, एंड only there are guys like Shubman Gill, maybe if Virat Kohli would have continued playing, he would have been able to do it, and certain caliber of people जो उतना मेहनत, उतना टाइम देना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट को. बिकॉज शुभमन गिल wasn't playing well पहले, before becoming captain. When he became captain, he went to England, he scored 269 in one game. He was made the man of the series. तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, the way I would say limited overs cricket में India is a beast today. कोई टीम आसपास भी नहीं है इंडियन क्रिकेट के. मतलब it is a shame कि हमारे पास 50 ओवर वर्ल्ड कप नहीं है अभी, because of that one bad night on 19th November 2023. Otherwise, no other team comes close to India today when it comes to limited overs cricket. Test cricket में अभी भी there is a long way to go. There's a long way to the entire अब तो रोहित विराट भी नहीं है, तो रोहित विराट भी नहीं है अभी. आपको प्रॉपर प्लेयर्स ग्रूम करने पड़ेंगे. एंड लकीली फॉर अस, हमारा जो ग्रूमिंग सिस्टम है, VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, ये लोग अभी भी उस मतलब पहले राहुल द्रविड़ थे, अब VVS लक्ष्मण स्ट्रांगली लाइक एक्टिवली वर्क्स विद द NCA, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है बैंगलोर में. एंड सो दीज गाइज आर ग्रूमिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स. सो देयर इज अ लॉट ऑफ होप, आई स्टिल फील. सो एज पर यू, द गेम का जो एसेंस है, जो गेम का जो मज़ा था, डिग्रेड हो गया है ये सब T20 और IPL आने के बाद, कि
how do you quote this? So I'll tell you, there are two types of cricket fans. Okay. ठीक है. One is the person who treats cricket like a party. Okay. ठीक है, अरे यार मैच चल रहा है भाई, आओ सब घर आ जाओ, चिप्स ले आओ, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, ठीक है, मस्त चिल करेंगे, बैठेंगे. उस इंसान के लिए T20 क्रिकेट बना है. ठीक है, वो आएगा, IPL सब बैठ के देखेंगे, मज़ा करेंगे, 2-3-4 घंटे का मैच चलेगा भाई, इन्जॉय किया, ख़त्म, सब अपने अपने घर चले गए. देर इज़ ज़ीरो अटेंशन स्पैन, देर इज़ ज़ीरो मेमोरी. ठीक है, मुझे अभी कुछ दिन बाद मुझे आई हैड टू लिटरली सर्च एंड आई हार्डली मिस एनी क्रिकेट फैक्ट्स, बट मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि KL राहुल के बाद फास्टेस्ट T20 सेंचुरी IPL में किसने बनाई है. Oh. मुझे भी याद नहीं है. यशस्वी जायसवाल. यशस्वी जायसवाल. Right. Right. हाँ. तो नहीं, अभी सूर्यवंशी है ना. अभी 15 balls भी- 50. नहीं तो यशस्वी डिड इट इन 13 बॉल्स. यशस्वी हाँ, did जब 13 उसने balls. सेंचुरी ये Okay. मुंबई इंडियंस के खिलाफ. Okay. तो एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इट वाज KL राहुल 14 बॉल्स. हम्म. क्योंकि अब अटेंशन स्पैन है ही नहीं लोगों के अंदर. मतलब पीपल हैव टू लाइक सर्च फॉर इट. बट विद द सेकेंड टाइप ऑफ क्रिकेट फैन विच इज़ द प्योरेस्ट, जो आई थिंक जगदीश भी है, मैं भी हाँ, यहाँ पे बैठा हूँ, हमारे लिए, और आप उस एरा के किसी भी क्रिकेटर के बारे में बात करोगे ना, या आप उनका इंटरव्यू भी लोगे, तो जब वो अपनी मैच की स्टोरीज बताते हैं ना, तो वो बाय डिफॉल्ट टेस्ट क्रिकेट के बारे में ही बात करते हैं. Yes. वो कोई बिल्कुल. T20 की मेमोरी या ODI की मेमोरी ऐसे नहीं बोलेंगे अनटिल अनलेस भाई उस ODI मैच में कुछ क्रेजी हो Crazy गया, हुआ रहेगा. लाइक Hmm. डेजर्ट स्टॉर्म लेवल का कुछ हाँ. क्रेजी हुआ हो. बाय डिफॉल्ट दीज आर टेस्ट क्रिकेट स्टोरीज. एंड Yes. why? Because I've always said this, by test cricket is the pinnacle. So in terms of experience, I don't care if there is one team batting for 5 days. I want to see that battle. I don't care if there are only 20 runs made in one session, but if you're not losing a wicket, that is the real Real deal. Yeah. real deal. Why is Cheteshwar Pujara respected so much? Because भाई वो बॉलर्स की हालत खराब कर देता था. मतलब आफ्टर ड्रेविड अगर कोई आया है जो हाँ. परेशान कर देता था बॉलर्स को, वो था चेतेश्वर पुजारा. Like batting for the whole day, all these Mitchell Stark, Josh Hazelwood, मतलब वो अपने बॉडी ब्लोज ले रहा है, उसके पूरा कंधा चला गया है, या बैक स्ट्रेन, ये स्ट्रेन, वो, बट वो खड़ा हुआ है. ही इज लाइक कि भाई मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ, तुम्हें जो करना है तुम अपना जोर लगा लो, मॉडर्न डे. आई विल नॉट मूव फ्रॉम दिस प्लेस. मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर किसी को देखना है कि चेतेश्वर पुजारा क्या कर सकता था, तो वो गाबा वाला ब्रिस्बेन वाला मैच देख लो. सीरियसली आप समझ जाओगे कि चेतेश्वर पुजारा क्या लेवल का उसका वो सीरीज वाज लाइक पूरा सीरीज वो आई थिंक चेतेश्वर पुजारा एट गाबा एंड इवन अश्विन एंड विहारी, अश्विन एंड विहारी, द वे दे हनुमा प्लेड, विहारी, मतलब yes, yes, विकेट ही नहीं absolutely. दिया भाई. नहीं तो ये स्टोरीज ज्यादा याद भी रहती हैं. हम लोग आज बैठ के बात कर रहे हैं और ये सब बातें कितनी 5 साल 6 साल हो गए. 5 साल हो गए. हाँ 5 साल हो 6 गए. साल, 6 साल, 2020 में था. 2026 चल रहा है. दिस हैपेंड 2020 21. हाँ 2021 Right. में हुआ था. तो वो मेमोरीज आपको याद है. आज भी हम ईडन गार्डन्स 2001 की बात कर रहे हैं. ठीक है, वो सारे बच्चे आर 25 एलिजिबल साल फॉर ड्रिंकिंग टुडे. 25 साल हो गए उसको. 25 साल हो गए उस बात को. वो आज भी मेमोरीज एकदम क्लियर है. क्यों? क्योंकि the उसके roots have हाइलाइट्स been- आज भी मैं देखता हूँ, हाँ सी और मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या So it मतलब- depends upon the viewer. या मतलब कि उसको क्या चाहिए. हाँ T20 and I think Lalit Modi recently said from a business perspective you need to put bums on the seat हाँ, in a yes. stadium. He said in an And interview, T20 cricket does that for you, right? आप देखो यार, मुझे इतना खराब, इतना बुरा लगता है ना जब अहमदाबाद में टेस्ट मैच होता है. इतना बड़ा स्टेडियम है भाई और खाली, लोग देखने ही नहीं आ रहे हैं. आप वही टेस्ट मैच आप मुंबई में कराओ, आप ईडन गार्डन्स में कराओ. भरा हुआ Bro, रहता है, खचाखच. people, even if it is a Monday na, people will Will go go and and watch watch. test cricket because they understand the value. And ये चीज़ 2019 में विराट कोहली ने बोली थी कि जैसे बाकी कंट्रीज में ना टेस्ट सेंटर्स होते हैं कि भाई अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ तो मुझे पता है मुझे एक टेस्ट मैच मेलबर्न में खेलना है, एक एडिलेड में खेलना है, एक ब्रिस्बेन में खेलना है, एक सिडनी में खेलना है, पर्थ में खेलना है. तो मैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी सब कुछ उस हिसाब से बिल्ड करके जाऊँगा. यहाँ तुम्हारे भाई कभी अहमदाबाद फेंक दिया, कभी रांची फेंक दिया, कभी इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया. नो डिसरिस्पेक्ट टू दीज ग्राउंड्स, बट देर इज लेगेसी अटैच्ड टू टेस्ट क्रिकेट. टेस्ट क्रिकेट इज प्योर भाई. टेस्ट क्रिकेट शुड बी इट्स वर्शिप, राइट? मैंने बोला ना T20 क्रिकेट इज द कॉन्सर्ट एंड वो आस्था चैनल है भाई. तो आप अपने आस्था चैनल को प्रोटेक्ट करो बिकॉज दैट इज व्हाट डिफाइंस योर कैरेक्टर. द थिंग इज, जैसे मैंने पहले बोला था कि 5 दिन का कोई गेम है ही नहीं वर्ल्ड में, एक टेस्ट क्रिकेट ही है. तो एक ह्यूमन बॉडी इतना ही ले सकता है कि वो चलो 3 घंटा खेल लिया इंटेंसिटी के साथ, जैसे T20 क्रिकेट होता है.
बट आप 5 दिन उसी इंटेंसिटी के साथ खेल But रहे कहीं हो. ना कहीं पे खत्म भी होगा बिकॉज तुम्हारे जैसे व्यूवरशिप आई थिंक दिस विल द लास्ट जनरेशन टू एंजॉय टेस्ट क्रिकेट. नहीं ऐसा नहीं है बहुत लोग हैं. Gladly, I would हाँ. be very happy to answer that question. मुझे भी बहुत लगा है ऐसा. हाँ. ठीक है. पर इंडिया में और वर्ल्ड में हर चीज़ की व्यूअरशिप है. ठीक है. ओके. हम्म. एक JCB का वीडियो 17 मिलियन व्यूज चला जाता है. यस. ठीक है. जिससे आप कुछ नहीं सीखते. ठीक है. ग्लैडली जितने भी बार मैंने टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात करी है on my channel and I've seen my other creators doing that also, we have always been met with a generation that wants to watch test cricket. It is the way it is being presented now, right? Why can't we have an IPL फॉर टेस्ट क्रिकेट. for test cricket? You make a separate window out of it. आप थोड़े से rules इधर उधर tweak करके देखो. सचिन तेंदुलकर once suggested कि ODI क्रिकेट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है 25-25 ओवर तो का. 25-25 ओवर का खेलो एंड लेट देयर बी 2 innings, राइट? सो देयर आर दीज इनोवेशंस. देयर वाज डे नाइट टेस्ट क्रिकेट दैट वाज इन्वेंटेड एंड डे नाइट टेस्ट क्रिकेट विद पिंक बॉल, इट इज़ अ डिफरेंट वाइब या ऑल टुगेदर. वो ईडन गार्डन्स में भी हुआ है, एडिलेड में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है. तो देयर आर वेज टू प्रोटेक्ट टेस्ट क्रिकेट एंड ग्लैडली देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड हु वुड लव टू वॉच टेस्ट क्रिकेट. So let's wait. They might come out with some innovative Yeah. concept for test cricket तो also. डे एंड नाइट टेस्ट मैच इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट क्योंकि पिंक बॉल से पूरा गेम बदल जाता है. और आप चाहे आप अहमदाबाद की पिच पे हो या एडिलेड की पिच पे हो, गेम बदल जाता है. हमेशा हमेशा Right. इट बिहेव्स हाँ, it डिफरेंटली. behaves very रात को तो differently. भाई क्या ही कर देती है हाँ, वो बॉल. वो है सच्ची में. तो ऐसा है. Interesting stories. Yeah. So Shivang, you have literally played the role of a stadium and an MRF bat. Where did the idea come from to stop being a pundit and start being the equipment? कहाँ से लाते हो सब ये? बहुत अच्छा सवाल अगेन. तो एक्चुअली हर मार्केट में ना, जैसे मैंने आपको बोला कि पैशन विल गेट यू इन बट स्ट्रैटेजी इज व्हाट विल हेल्प यू स्केल. तो अभी जो हमारी इंडस्ट्री है, इन जो क्रिकेट क्रिएटर्स की इंडस्ट्री है, बहुत सारे क्रिएटर हैं एंड एवरीबडी इज़ ब्रिलियंट एट व्हाट दे डू. बट व्हेन आई एंटर्ड और मैंने देखा कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, तो आई सॉ देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं, एक सब चीज़ सेम है कि अच्छा दे आर ऑल्सो डूइंग अ टॉकिंग हेड वीडियो, शी इज़ ऑल्सो डूइंग अ टॉकिंग हेड वीडियो, दिस पर्सन ऑल्सो डूइंग अ टॉकिंग हेड वीडियो. कैमरा सामने, आप एक फेस टू कैमरा बोल रहे हो और आप True. अपना टॉपिक कवर कर रहे हो, विच इज़ ग्रेट बिकॉज इफ द स्टोरी इज़ ब्रिलियंट, इफ इट इज़ बीइंग टोल्ड इन एन एंटाइसिंग वे, द वीडियो विल डू वेल. तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी कि यार जो ये शुरुआत हुई थी, आई मेड माई फर्स्ट वीडियो फ्रॉम ऑन इन दिस सीरीज वॉज द ऑरेंज कैप. ठीक The है. orange cap. मैंने कहा यार अगर ऑरेंज कैप एक इंसान होती, ठीक है, तो वो कैसा महसूस करती. ठीक है. तो फिर पहली बार मैंने वो ऑरेंज कैप वाला वीडियो बनाया कि अरे कभी प्रिंस के पास चली जाती हूँ, कभी किंग के पास चली जाती हूँ, कभी कोई और मुझे ले जाता है, मैं तो कभी टिक ही नहीं पाती. क्योंकि उस टाइम पे ये हो रहा था कि हाँ. हर मैच में ऑरेंज कैप कभी इसके पास है, कभी इसके पास है, कभी इसके पास है. तो बट द फर्स्ट वीडियो दैट गिव मी वैलिडेशन वाज व्हेन आई बिकेम वानखेड़े स्टेडियम. Oh, ठीक है. तो वानखेड़े स्टेडियम में थोड़ा सा मराठी एक्सेंट भी वहाँ पे आता है कि कुछ ऐसा कि यू नो सवाल ब्रो, बिकॉज इट्स अ वेरी मुंबईया थिंग टू से, Mumbai, yeah. राइट? कि सचिन का स्ट्रेट ड्राइव और बाजू में मरीन ड्राइव सब कुछ किधर है? वानखेड़े के पास. ठीक है. रोहित शर्मा स्टैंड किधर? मेरे वानखेड़े पास. सुनील गावस्कर स्टैंड किधर? अपुन के पास. तो वो एक, और जब मैंने वो चीज़ अपलोड करी एंड द काइंड ऑफ लव दैट आई सॉ, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का ऑफिशियल पेज कमेंटेड ऑन इट. Oh, wow. That's Celebrities like Ahana Kumra, Sanjana Ganeshan, she liked it. तो and that video sort of कुछ I think 2.5 million views उसको मिले. nice. Wow. तो and then I decided to make it a series. तो अब होता क्या है, उससे मुझे क्या हेल्प मिलती है? And then came the MRF bat also, because MRF bat is like a huge nostalgia trip for every 90s cricket fan कि यार सचिन का MRF bat था, अभी विराट कोहली यूज़ करता है, अभी फिर शुभमन गिल यूज़ करता है. तो every generation can connect with it. And then when you do different stadiums ना, तो when I did एकाना स्टेडियम लखनऊ, तो मुझे एक लखनऊ के लहजे से बात करनी है. मुझे अगर चिन्ना स्वामी बनना है तो मुझे बेंगलुरु एक्सेंट पकड़ना पड़ेगा. एंड इसीलिए चिन्ना स्वामी स्टेडियम मैंने बहुत बाद में किया. मेरे पास बहुत लोगों का मैसेज आया कि अरे भैया ये करो ये करो ये करो, बट आई वॉज नॉट गेटिंग द एक्सेंट राइट. एंड लाइक व्हेन यू आर यू नो
directing your content to a community, so it comes with a lot of responsibility. Absolutely. I cannot fumble. I cannot say something that has to be said in a certain way, in a different way. क्योंकि लोग बहुत इमोशनल हैं भाई. Emotional, especially cricket. क्रिकेट को लेकर के तो yeah. मतलब तो अगर मुझे ग्रीन पार्क स्टेडियम बनना है कानपुर वाला, तो दैट कम्स वेरी नेचुरली टू मी, क्योंकि मैं कानपुर से हूँ. ठीक है, तो मैं पूरा उसमें बकैती, बकलोली, मैं सब वर्ड्स यूज कर लूंगा बड़े आराम से. बट जब मैं चेपॉक स्टेडियम बन रहा हूँ, या मैं चिन्ना स्वामी बन रहा हूँ, या मैं अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन रहा हूँ, तो मैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम जब मैं बन रहा हूँ तो मुझे गुजराती बनना पड़ेगा एट हार्ट. ईडन गार्डन्स बन रहा हूँ तो मुझे वो बंगाली बाबू बनना पड़ेगा, मुझे वो एक्सेंट पकड़ना पड़ेगा. तो कई बार वो पकड़ने में थोड़ा सा अगर इधर उधर भी हो गया ना, तो इट बिकम्स वेरी सेंसिटिव. रिसर्च होगी बहुत होता रहेगा. Research plus so what I try to do is I before I upload one such video, so I watch a lot of content in that language, कि अगर ये एक्टर है तो ये बोल कैसे रहा है, अगर बंगाली में अगर ये शब्द है तो उसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, क्योंकि स्टैट्स वगैरह तो है मेरे पास. मेरे पास टॉकिंग अबाउट स्टैट्स बिकॉज़ जैसे अपने बॉम्बे का बोला, जिसके पास मरीन ड्राइव भी है और ये भी है, तो दोस थिंग्स, तो यू आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दी स्टेडियम्स, तो उसके थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूं. थोड़ा सा रिसर्च. जैसे अब ग्रीन पार्क स्टेडियम इज ओल्डर देन मतलब अपना ईडन गार्डन्स. इट वाज देयर व्हेन ब्रिटिश रूल वाज देयर. तो उसमें मतलब एक लाइन ये भी हो गई कि अरे अंग्रेजों के जमाने से मैं यहीं हूँ. ठीक है, तो वो सब चीजें व्हेन यू प्रेजेंट इट इन अ फन वे and you make people smile, you make people, like you entertain people, I think that is the and you best connect thing to with do. them, yeah. And you connect with them because अब होता क्या है ना कि अब वानखेड़े का जो वीडियो है वो मुंबई की ऑडियंस के पास जाएगा, चिन्ना स्वामी इधर जाएगा, ईडन गार्डन्स उधर जाएगा. सौरव गांगुली वीडियो, आई एम टेलिंग यू, that video alone has given me 4,000 followers. Wow. And 90% of them are from Kolkata. तो मतलब कंटेंट इज एसिमेट्रिक भाई. हाँ बिल्कुल. किसने कॉपी किया आपका ये कॉन्सेप्ट? एनी अदर इन्फ्लुएंसर और एनी अदर कंटेंट बहुत क्रिएटर? मतलब you pioneered it, but did someone copied you? this format. This concept of yours. ये स्टेडियम वाला. Yeah, stadium वाला. I think MRF बैट वाला. हाँ नहीं, सो आई थिंक अभी तक जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे कई सारे लोग कंटेंट बनाते हैं. मेरे पहले भी लोग बना रहे थे, अभी भी लोग बना रहे हैं, बट ऐसा स्टेडियम बन के कोई नहीं बना रहा, या कोई ऐसा क्रिकेट का इक्विपमेंट अभी भी लोगों ने छोड़ के रखा है. It was cricket specific, I was asking, मतलब in your genre only. नहीं, बट मेरे कई सारे फॉर्मेट्स कॉपी हुए हैं. अच्छा. तो बट आई फील वेरी लव्ड व्हेन पीपल डू दैट. हाँ, बट द ओनली थिंग इज, एंड आई वांट टू से इट ऑन रिकॉर्ड, कि भाई क्रेडिट दे दिया करो. ठीक है, वो हम इंडियंस की थोड़ी सी वो है कि we don't give credits easily. नहीं, so there is one format that I do where it's like a POV. For example, you are KL Rahul. ठीक है, you are reading a book and somebody asks you a question and you answer it and you just say हाँ हो जाएगा, हाँ मैं कर लूँगा. तो then you ask another question and the answer remains same, हाँ मैं कर लूँगा. Which means कि KL Rahul is a very like open guy. वो हर चीज़ कर सकता है लाइफ में. तो अब वैसे ही फॉर्मेट मैंने संजू सैमसन के लिए बनाया था कि संजू यार अभी माही भाई कीपर हैं, तू बाद में आ. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. फिर संजू अभी डीके भाई फॉर्म में आ गए तो तू बाद में आ. संजू अभी ऋषभ अच्छा खेल रहा तो तू बाद में आ. तो वो मैंने वो फॉर्मेट फिर किसी और ने कॉपी किया, उसको भी खूब प्यार मिला. माई वीडियो रीच्ड 5 million, हिज वीडियो रीच्ड 100K, 200K. So I'm really happy when I can, because every content piece that you make today has the potential to become a revolution. Absolutely. Right? And if my content is able to do that, that is a win. उससे follower आए ना आए, engagement आए ना आए, does not matter. But अगर आप सामने वाले को इन्वोक कर पा रहे हो, इंस्पायर कर पा रहे हो, खुश कर पा रहे हो, दुखी कर पा रहे हो, तो it's all a win. Yeah. When you talk about content creation, ठीक है, and then you become popular, like आपके वीडियोस जब वायरल जा रहे हैं तो people start to know you. जैसे आपने बोला 4,000 followers just from one reel. Yeah. Okay. तो with popularity comes fans. Okay. Yeah. And fandom ऐसा है कि there are positive fans, there are negative fans as well. मतलब दोनों aspect होते हैं. तो I just want to know that how do you handle the negative DMs? And when a fan's opinion does not sit well with you, Yeah. so how do you tackle that? See, I think many years ago there was a show called OA It's Friday. And yes, I know. Farhan Akhtar used to host it. Friday, yes. And the guest was Abhishek Bachchan. और अभिषेक बच्चन ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि if you are a celebrity in India, right, and if you become or if you want to become like popular, तो you have to be immune to people's opinions.
क्योंकि लोगों का ओपिनियन होगा. अगर आपने इतना कुछ कमाया है लाइफ में अपने कंटेंट से या अपने काम से या जो भी है, तो लोगों के ओपिनियंस होंगे, हमेशा होंगे. एंड नॉट एवरी ओपिनियन हैज टू सिट वेल विद यू. इफ टुडे आई से दैट सौरव गांगुली इज द ग्रेटेस्ट कैप्टन, someone will say नहीं MS धोनी is a better captain. I respect your opinion, but not necessary कि हर बार लोग आपका opinion respect करते हैं, because Yes. people get very emotional and I'm just astounded when I see so much hate that is there online. मतलब I'll give you an example. When Shubman Gill was announced as test captain, ठीक है, तो और उसके पहले ना ऐसी बात चल रही थी कि भाई शुभमन गिल could be our next test captain. तो मैंने ना एक लाइट हार्टेड वीडियो बनाया था, क्योंकि भाई मैं उस जनरेशन से आया हूँ जब सचिन तेंदुलकर जब अपने चरम पे थे, तो देयर वाज अ कॉमेडियन, लाइक वेरी रिस्पेक्टेड कॉमेडियन कॉल्ड विक्रम साठे सर. ठीक है, एंड ही मेड अ ब्यूटीफुल वीडियो अबाउट सचिन तेंदुलकर, अबाउट हाउ ही बैट्स, अबाउट उनका पूरा स्टांस और वो जो करते हैं ऐसे, और वो आंखें ऐसे ऐसे करते हैं, सौरव गांगुली ऐसे आंखें करते हैं. तो ये बहुत नॉर्मली और बहुत अच्छे से लेते थे हम लोग, राइट. ऑल ऑफ अस यूज्ड टू लाफ एट इट, वी फेल्ट वेरी एंटरटेन्ड. बट व्हेन आई मेड दैट वीडियो, तो उस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ये था कि अगर शुभमन गिल टेस्ट कैप्टन बन गया, एंड शुभमन गिल हैज अ थोड़ा स्क्वीकी वॉइस, राइट, जब वो इनिशियली व्हेन ही केम, तो मैंने उस चीज़ को पकड़ा और मैंने उस पर विराट कोहली के जो आइकॉनिक डायलॉग्स हैं अबाउट आई विल गिव यू 60 ओवर्स ऑफ हेल, तो वो मैंने उस आवाज़ में किया. My intention was not to hurt Shubman Gill's not to make fans, fun, or not to make fun. Like he's a generational talent, bhai, Shubman Gill. Yes. And we are very lucky to have Shubman Gill in our team. But the way that video was taken in such a way कि भाई मैं तो Shubman Gill को player मानता ही नहीं हूँ, which was crazy, क्योंकि मैं बस उसकी एक impression करने की कोशिश कर रहा हूँ, good or bad I don't know. वो video किसी ने screenshot लेके Twitter पे डाला, और ट्विटर पे जो मेरी बजाई है लोगों ने भाई, मेरे पास डीएम्स आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन मेरा पूरा भर गया है कि भाई तुझे जेल में डाल देंगे, तुझे फेंक देंगे, तू दिख गया तुझे जला देंगे. तो फिर घर वालों पे आ गए वो लोग, अरे आई हैव योर वाइफ्स फोटो, सी व्हाट आई विल डू विद इट, आई नो वेयर यू स्टे. एंड आई वाज जस्ट, मतलब मुझे लगा यार मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू हर्ट एनीवन, आई एम नॉट ट्राइंग टू, मतलब मेरा वो इंटेंट भी नहीं है जो आपको लग रहा है. और थैंकफुली लाइक उस टाइम पे एट माई वर्क प्लेस आई हैड अ फ्रेंड खुशबू, उसका जो हस्बैंड है वो कॉमेडियन है, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, और स्टैंड अप कॉमेडियंस का तो रोज का है भाई, उनको रोज मिलता है. तो मैंने उसको जब बताया इसके बारे में, तो उसने बोला अबे ये बहुत नॉर्मल है, एंड यू डोंट पे अटेंशन, यू जस्ट क्लोज योर कॉमेंट सेक्शन. तो वो मैंने किया. फिर लोग मेरे दूसरे वीडियोस पे करने लगे, अरे बाप रे. और पर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुई कि वो वीडियो 2 मिलियन पे चला गया. ठीक है, और उससे मुझे फॉलोअर्स आए 269 कोइंसिडेंटली, व्हिच इज शुभमन गिल्स हाईएस्ट स्कोर 269. मतलब इफ यू लुक एट द पॉजिटिव साइड, तो दैट वीडियो सॉर्ट ऑफ पुट मी आउट देयर कि हाँ भाई ये कोई है, भले ही वो हेट की तरह से गया हो. बट उसके बाद जब एंड ऑनेस्टली मतलब आई कैन से इट ऑन एयर, आई ऑलवेज रेटेड शुभमन गिल वेरी हाई, बट आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज अ टेस्ट प्लेयर. बट आफ्टर दैट इंग्लैंड सीरीज आई हैव like always put respect on his name, क्योंकि इंग्लैंड में जा करके लगातार परफॉर्म करना is not a piece of cake. And he has like worked insanely hard at that level with the expectations that he has, and I think he has a like bright future in front of him. And plus his attitude throughout that test series was great, like when he said have those freaking balls, जब उसने उसको बेन डकेट को बोला था. तो ये सारी चीजें मतलब आपको लगता है यार कि हाँ नहीं यार, this guy is my team's captain, I'm very proud of him. तो वो चीज़ आती है अब शुभमन गिल के लिए. बट एंड आई ऑल्सो टुक दैट अपॉर्चुनिटी टू से सॉरी टू पीपल कि भाई मैंने खुद डाउट किया था इसके ऊपर, सो आई ओन इट अप एंड आई विल से इट कि भाई ही हैज प्रूव्ड मी रॉन्ग, एंड आई एम ग्लैड दैट ही हैज. बट विल आई डिलीट दैट वीडियो, डिड आई आर्काइव इट, डिड आई गेट अफेक्टेड? Yes, I got affected, but I will never delete it. I will not do it because it is my voice, it is my opinion. In an independent country with free speech, I'm allowed to say that. Speech you got, sir. और मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि भाई तुम मेरे घर जलाने आ जाओ, ठीक है? तो Even religion, right? या अगर शुभमन गिल भी वो वीडियो देखेगा ना, उसको भी मजा आएगा, वो भी हंसेगा. वो घर जलाने नहीं आएगा. Exactly, like शुभमन गिल has 9,000 problems to worry about. Not this one. Of course. If you could sit down with a cup of tea with one cricketer, past or present, not to interview them, just to hear their most unfiltered story, who would it be and why? And why? If you want to have a chai with Charcha with him. I think it would be, I've
मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा सोचूं Hmm. तो मुझे ऐसा लगता है वुड लव टू सिट विद MS धोनी. Okay. क्योंकि why do I say that? Because there are a lot of stories about MS धोनी. ठीक है, हाँ, मतलब आप किसी भी क्रिकेटर का आप इंटरव्यू ले लो, Right. दे हैव एन MS धोनी स्टोरी. हाँ, ठीक है कि अरे yes. माही भाई ने ऐसा किया था, उस मैच में माही भाई ने ये किया था, उस मैच में माही भाई ने ये किया था. I just want to hear the unfiltered version. I just want to hear his perspective because he rarely comes on camera. He Yeah. rarely speaks about his own, the things that he has done. जो इतना कुछ उन्होंने अचीव करा है इंडियन क्रिकेट में. And just to, get inside his mind and ask him कि यार इस मोमेंट पे आप क्या सोच रहे थे? Yeah. क्योंकि ये नॉर्मल इंसान तो सोच नहीं सकता है भाई. Yeah. 2016 T20 वर्ल्ड कप में जब वो रन आउट किया था एंड उसके पहले ही वॉज प्रैक्टिसिंग दैट रन आउट, तो हाउ डू यू डू दैट? एंड प्लस टू रन एंड एक्चुअली एग्जीक्यूट इट, Execute. to finish games for India so consistently from when you are 9 down and to have that audacity to hit a 113-meter six in Adelaide. Yes. Like, how do you get that and where do you get that audacity from? क्योंकि वो शॉट इधर उधर गया तो क्या हो सकता है भाई? You are their last recognized batter. We could lose that series. You would be laughed at. Your whole legacy would be ruined. और unfortunately अगर MS धोनी ने हमें 10 मैच जिताए हैं तो लोग वो एक मैच याद रखेंगे जहाँ पे he could not finish. 2019. 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल when he, अब तो इतने एडिट्स बन गए हैं उस एक बॉल पे एक ball that he let go to the keeper लॉकी फर्ग्यूसन का, और उसमें लॉकी फर्ग्यूसन भी ऐसे वो जेस्चर कर रहा है. लोग ये नहीं देखेंगे कि सामने जडेजा कितना अच्छा खेल रहा था. पीपल विल नॉट सी द अदर साइड, क्योंकि अटेंशन स्पैन नहीं है ना, कोई जानना ही नहीं चाहता किसी को. nobody cares about the It was context. Jadeja who brought us this close. Bro, Yeah. 77, like Kane Williamson said that Ravindra Jadeja was the only batter from both teams to have played so well. Played so well, And yes. to be fair, that game was completely unfair on us. Unfair. One day game को आप 2 day में कर रहे हो, बारिश हो जाती है, ball starts moving, we don't have Shikhar Dhawan, the ball is moving one side, सारे right-handed batters out हो रहे हैं, विराट कोहली gets out on an umpire's call हाँ. in a chase. तो your back is already broken. वो मैच 10-15 ओवर पहले खत्म हो गया खत्म था. हो जाना रविंद्र जडेजा took us there. took it to the end. Yeah, वो yeah. 77 उसने बनाया वहां पे, वो अनफॉर्चुनेटली बाद में आउट हो गया. दैट वाज द वो एंड गेम था. People think that it was because of MS Dhoni we lost. It actually was Jadeja's wicket that we इट lost. वाज जडेजा's wicket that, एंड आप फिर भी देखो इतने सारे लोगों ने तब भी अपना टीवी स्विच ऑफ नहीं किया था, बिकॉज दैट वन Jadeja मैन वाज हाँ, देयर. Jadeja was there. जब 25 रन चाहिए थे 9 बॉलों में, उसने छक्का मारा था भाई. सॉरी, उससे पहले वाली बॉल पे उसने पहले वाली छक्का पे मारा छक्का था. जब 25 फ्रॉम 9 बचे थे तब वो आउट हुआ. Hmm. तो एंड बिकॉज ही हैड डन इट फॉर सो मेनी इयर्स फॉर अस, पीपल विल रिमेंबर दैट वो जो स्लोअर बॉल पे ड्वेन ब्रावो ने आउट किया था एक T20 मैच में, 243 रन्स में कुछ चेस करने थे हमें. KL राहुल मेड अ सेंचुरी, तो लोग बोलते हैं अरे MS धोनी ने सब बर्बाद कर दिया. अब MS धोनी ने क्या क्या किया तुम वो देखो ना. 3 ICC ट्रॉफी भाई, मतलब लोग मजाक नहीं अपने है जेनरेशन में नहीं कर पाते. लोग रिकी पॉन्टिंग से कंपेयर करते हैं, और रिकी पॉन्टिंग सबका बाप है भाई, किसी को पता नहीं है, राइट? एंड व्हेन people lose context and they talk shit about these legends, as a fan you just feel like so furious. But भाई मैं किसी का घर नहीं जलाने वाला हूँ इस बात के लिए. You are entitled to have your opinion, but get your facts straight. Yes. अगर आपके पास भाई, और जहाँ जो आपने फैन हेट्रेड की आपने बात करी, 13 साल का बच्चा मेरे ब्रॉडकास्ट मैसेज में आकर के बोल रहा है भाई तू चुप कर, तू बहुत बोल रहा है आजकल. 13 साल का बच्चा बेटा, ये ऐसे ही होता है. मतलब जब वो अपने डाइपर्स में था तो मैं कॉलेज में गया था भाई उस टाइम. तो ये होता है. ये दैट इज द No, ऑडेसिटी दैट, So Indians, as Indians, us, yeah, we attach emotions to everything. and it's not just about, and I'm not saying कि ये अभी के जनरेशन की प्रॉब्लम है. Everyone. पहले भी yeah. था, Every तब सोशल मीडिया generation. नहीं था. हाँ, तब social media. Everything was not so accessible, and for a creator also to, जैसे मैंने बोला ना कि you start with passion but you scale with strategy. Along with that you need to have thick skin भाई. ये अगर नहीं है आपके पास तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे. नहीं कर सबका अपना ओपिनियन है, बट उधर ग्राउंड पे क्या चल रहा है वो तुमको थोड़ी पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. Right. ओपिनियंस तुम्हारे पास, तुम देते बैठो, ठीक है. सही बात है. मतलब अभी इतने फैन अवार्ड्स होते हैं, राइट? दीज क्रिकेटर्स डोंट केयर. वो हाँ, बेचारे they- अगर they have to be that thick skinned यार, कुछ वो नहीं कर सोचते सकते. बैठेंगे तो खेलेंगे नहीं, फिर वो कोई Exactly. खेलेगा ही नहीं फिर. एंड अभी मतलब इंडिया में, एंड अलॉन्ग विद लाइक द ग्लोबल रीच दैट क्रिकेट हैज, एंड विद स्पोर्ट आई वुड से इन जनरल, यू आर लाइक
you are in such a vulnerable state all the time हाँ, because you have 30 cameras looking at you. आप एक छोटा सा gesture कर दो, आप अपनी नाक में उंगली नहीं डाल सकते भाई, लोग उसका मीम बना देंगे. कांस्टेंट सर्वेलेंस पे तुम लोग Constant- मतलब एक इंसान भाई वो जमाई ले ले मैच के बीच में, वो मीम बन जाता है. ठीक है, तो अगेन देयर आर टू साइड्स ऑफ इट. श्रेयस अय्यर takes a brilliant catch, he goes on the front page. Shreyas Iyer puts his finger in his nose, he goes on the front page. It's that bad today. Yeah, it is. So it all comes with thick skin. You are under the scrutiny all the time. All the time, bro. All the Especially if you've done something, मतलब आपने कुछ बड़ा किया है time. Yeah, और आप न्यूज़ में हो, तो आप फॉरएवर न्यूज़ में हो. absolutely. फिर आप कुछ भी कर लो, आप उन न्यूज़ से हटते नहीं हो. मतलब अच्छा, अगर यही सवाल मुझसे पूछा गया होता ना, हाँ जी, हाँ तो I would have said Lance Klusener. Why? Oh. Why? You know why? That one run that he one missed run, yeah. in that semi-final. I have so on that one run, I have seen Alan Donald's side of it. Yeah. I have actually seen an interview of Lance Klusener talking about it. Right. And Lance Klusener openly says that it was not about that one run. We did not lose the game there. We had lost the game way before Way that. before that. वो तो हम किसी तरह वहां तक आ गए थे. And अरे that भाई is like 101 बनाया बंदे ने और लास्ट रन पे हार गया. last run पे हार गए. तो see, this is what sport does to you, Yeah. right? And It's a great leveler. it's Yeah. a great level. It's the अगर आप and I encourage every person, every parent today कि भाई अपने बच्चों को आप जितनी जल्दी स्पोर्ट में डाल सकते हो तो डाल डालो. दो, उससे हाँ. ज़्यादा आप कभी नहीं सीख पाओगे. बिल्कुल नहीं सीखा. मतलब मुझे आज 32 years of age, I still remember जब मैं 10 साल का था तो वो इनिंग्स मैंने खेली थी, मैंने उससे क्या सीखा. हाँ. और वो मैच जो अपने शायद गली में खेला था, हम कहाँ पे थे और हम कहाँ पहुंच गए, ये कैच ड्रॉप हुआ, वो कैच पकड़ा, एक रन आउट हुआ, Yeah. वो कोर मेमोरीज बन जाती है. I remember, so I used to be a left hand bowler. मैं वैसे righty हूँ, Oh. but I'm a lefty when Left-hand it comes bowler. left hand bowler. And I was a swing bowler. Oh. तो मैं मोटा था पहले से ही. मार्को यानसन टाइप. हाँ, नहीं इरफान पठान टाइप. अच्छा, बट वो बैटिंग भी लेफ्टी करते हैं ना. अच्छा हाँ, हो सकता है. हाँ. तो आई वॉज राइट हैंड बैट बट लेफ्ट हैंड बॉलर और मेरी स्विंग बहुत अच्छी होती थी. Oh, आई वॉज नोन फॉर इट. Okay. तो मेरा हर एक विकेट याद है मैंने कैसे लिया है है. लिटरली याद है. और मैं क्या था, आई वॉज बैटिंग में, आई वॉज बोलते ना वो, आई वॉज अ हिटर. आई वॉज टुक नहीं खेलूंगा मैं हिट ही मारूंगा. तो मेरे को ये भी याद है कि मैंने किस को छक्का मारा हुआ है. मैं तो कह रहा हूँ राजस्थान रॉयल्स के लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हो. नहीं 40 हो गया, अब नहीं कर सकते. प्रवीण तांबे हाँ, ये बात तो है, बट वो अलग बात थी, वो स्टोरी अलग था. हाँ नहीं, दैट्स व्हाई, बिकॉज स्पोर्ट्स सिर्फ फॉलो करके आप इतना कुछ सीख जाते हो ना लाइफ में. बिकॉज कई बार मैचेस ऐसे होते हैं, मतलब 2006 साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, द ग्रेटेस्ट ओडीआई दैट एवर हैपेंड. एक टीम 50 ओवर मैच में उस टाइम पे आप 300 रन भी बना लेते तो बहुत बड़ी बात होती थी. उस मैच में ऑस्ट्रेलिया मेड 434 रन्स, राइट. द मैच वाज ओवर, इट्स अ सीरीज डिसाइडर, फाइनल है वो. साउथ अफ्रीका कम्स बैक, चेजेस इट डाउन विद 1 बॉल रिमेनिंग. एंड इट्स 2006, nobody has ever heard कि 400 हो सकता है. कि मतलब T20 IPL के पहले की बात है, T20 वर्ल्ड कप के पहले की बात है. तो सर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, एक फुल टाइम स्ट्रैटेजिस्ट हो, अ फादर ऑफ अ 1.5 साल किड. या हाउ डू यू मैनेज द चाय, योर पर्सनल लाइफ, with the charcha, professional content without burning out? So I won't say that burnout doesn't happen. Okay. It does at times, Okay. to be very honest, and it's not easy. Mm-hmm. I can give you the flowery answer with which you can cut it and you can put it on a reel and God bless if it goes viral, but I'll tell you the stuff that no one talks about. Yeah. See, no matter how much I love creating content, no matter with God's blessing, and God has been extremely kind, whatever little I've been able to build from what I had, it's all because God has been extremely kind to me, right? But none of that would have happened without my wife's support, without my family being there for me 24/7, because obsession होना, delusional होना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, right? You can be sitting at 0 followers. You should have the audacity to take that camera, open the front cam, say it on it, कि I'm going to be the biggest YouTuber in the world. वो audacity होना बहुत ज़रूरी है. पर उसके साथ साथ अगर आपको कल को वो चीज़ मिल भी जाती है, family is the only thing, friends are the only thing that will keep you grounded. और ये चीज़ I have learnt it the hard way. I have seen my YouTube channel going berserk in one night. One cricket video of the same 438 game. It went viral, 750k views, channel got monetized.
Very next day, my channel got banned. Oh. It was such a huge blow. मैं रात को मैंने AdSense अकाउंट लिंक करके मैं सोया हूँ. सपने में मैं देख रहा हूँ कि भाई मैं विराट कोहली का इंटरव्यू ले रहा हूँ. सुबह उठा, देखा, अकाउंट चला गया. ये सब चीज़ें इतनी टेम्पररी है ना भाई, इतनी टेम्पररी है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता. मतलब you can never attach your emotions with your material success. You can't. Whether you it is your degree, whether it is anything. anything in life that you achieve. And then you have only your family and friends to fall back on. Exactly. And kal ko, or when that happened with me, I took a 2-month break. Oh. I did not make one single video because I was devastated, because that was not the first time it had happened with me. Second मेरे time साथ हुआ था ये? दूसरी बार हुआ है. ओ भाई. YouTube पे दूसरी बार हुआ, Instagram पे एक बार हो चुका था. पहले आई यूज टू मेक वॉइस ओवर वीडियोज ऑन क्रिकेट फुटेज, तो वो क्रिकेट फुटेज की वजह से वो सब बंद हो गया, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया. एंड आई वॉज क्लूलेस. मुझे आज भी याद है, मैं मंदिर में बैठा हूँ महादेव के सामने और मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट ट्राइंग टू हर्ट एनीवन. व्हाई इज इट हैपनिंग विद मी? और उस दिन ना मैंने डिसाइड किया, एंड आई थिंक दिस इज वन थिंग विच डिवोशन टू लॉर्ड शिवा हैज टॉट मी, how important it is to be detached in life, because वो खुद बैरागी थे. Right? And उस दिन मैंने ये बोला कि भगवान ऐसा है, आज के बाद जो भी मैं करने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू अटैच एनी रिजल्ट टू इट. आई एम जस्ट गोइंग टू डू वॉट आई डू बेस्ट, क्योंकि मैं क्विट नहीं कर सकता. मुझे क्विट करना आता ही नहीं है. दिस इज वॉट आई डू, दिस इज वॉट आई हैव बीन डूइंग, दिस इज नो, आई नो वॉट आई एम गुड एट. दिस इज वॉट ब्रांड्स लाइक स्टार स्पोर्ट्स हैव रिकॉग्नाइज्ड. और अगर स्टार स्पोर्ट्स बोल रहे हैं ना कि भाई तू स्टार स्पोर्ट्स ड्रीम जॉब के टॉप 10 में आ सकता है, तो मतलब कुछ तो होगा ना, कुछ तो दिया होगा ना. हर कोई आकर के बोल रहा है कि भाई आई एम फॉलोइंग इन लव विद क्रिकेट बिकॉज ऑफ योर अकाउंट. एंड व्हेन यू सॉर्ट ऑफ गेट दैट स्मॉल वैलिडेशन, आपके 5,000 6,000 फॉलोअर 7,000 फॉलोअर हो गए और सब कुछ एक रात में चला गया, यूट्यूब मोनेटाइज हो गया, सब कुछ चला गया, तो मतलब कुछ तो सही कर ही रहा था ना मैं. और जब आप रिजल्ट हटा देते हो ना इक्वेशन से, एंड देन God is like कि now you have given everything to me, now let me decide what to do with it. You just do what you are good at. ये भगवत गीता में भी यही लिखा है, कर्म करो फल की चिंता न करो. बोलना में बहुत आसान है, बहुत आसान. It's very easy to say. मैं आपको यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, ठीक है. मुझे अभी भी लगता है वीडियो अपलोड करने के बाद यार अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया यार, 1000 लाइक नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. तो ये चीज़ रहेगी, पर मैच्योरिटी इज रियलाइजिंग कि ये मेरे कंट्रोल में सिर्फ वो है जो मैं कर सकता हूँ. और फिर सब, और मैं आज भी आपको बोलता हूँ, मैं वीडियो पे जैसे अपलोड दबाता हूँ ना, आई पुट इट विद बोथ माई हैंड्स ऐसे, आई प्रे कि भगवान जो करना है आप देख लो, मैंने अपनी मेहनत कर ली है, नाउ यू टेक इट वेयर एवर यू वांट टू. राइट? तो अब वो कभी 2 मिलियन पहुँच जाता है, कभी 2,000 पहुँच जाता है, वो अपने आप वो डिसाइड कर लेंगे. दैट इज नॉट माई जॉब टू डू. आई एम नॉट, दैट इज बियॉन्ड माई पे स्केल. Right? Yeah. तो beyond anybody's space scale act. And that is why I'm telling you, ये जो सक्सेस है ना, मटेरियल सक्सेस, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, राइट? परसों कुछ और हो सकता है. एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन हैपन इन दिस लाइफ, बट ऑल ऑफ दिस यू शुड नॉट अटैच योर आइडेंटिटी विद ऑल ऑफ दिस. जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं आज भी उस दोस्त को याद रखता हूँ जिसने मुझे वो वाली जॉब दिलवाई थी, राइट? टिंडर मैच के थ्रू, राइट? मैं आज भी उस दोस्त को याद रखता हूँ जिसने रात के 2 बजे अपना रूम दिया था कि भाई तू रिकॉर्ड कर ले. आज भी वो मदर हो, फादर हो, माई वाइफ, शी हैज़, मतलब ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी देयर वाज IPL गोइंग ऑन, आई यूज्ड टू डू पॉडकास्ट till 1 AM 2 AM एंड शी यूज्ड टू बेयर विद इट फॉर सम टाइम. तो इट्स नॉट वन पर्सन's success that leads you to here. It is a sacrifice of multiple people, right? Both my sisters, my brothers-in-laws, everyone has contributed to this journey. And today I think my latest teacher, my latest mentor, and I've been blessed with great mentors all my life across careers. Today my mentor is my son, 1.5 years old. He doesn't care about the world. उसे जो करना है वो करता है. वो रेस्टोरेंट में वो टेबल पे चढ़ जाता है, चीज़ें उठा के फेंक देता है. एंड I what I've learned in life is that the universe does not reward manifestation, it rewards audacity. It rewards action. I can think of becoming a YouTuber, I can
pray and I can manifest that 1 million, subscriber, वो diamond वाला चीज़ मैं अपने हाथ में कर सकता हूँ. But till the time I don't have the audacity to wake up, sit in front of a camera, learn the right skills, learn how AI is helping me out, learn how I can scale things across, it is not going to happen. बैठे बैठे तो डायमंड बटन नहीं आने वाला है ना. बैठे बैठे नहीं आने वाला. एंड ये सब चीज़ें बोलने के बाद भी मैं ये बोलूँगा कि ये सब टेम्पररी है भाई. टेम्पररी. Your family will keep you, always keep you humble. My wife is my most honest critic. She doesn't care if a video goes for 1.3 million. If it is shit, it is shit. But I think, jokes apart, my support system, my pillars, they've been like very, very kind to me. And सबसे पहले तो God. Yeah, so Nice. मतलब you always fall back on God of and family or either or. Yeah. So मतलब ये होना ही चाहिए. बिल्कुल. And चाहे आप कोई भी हो. आप कोई भी हो यार, आपने मेरे फादर के बारे में बात करी. Unfortunately, he is not here in person, in flesh. He would have been like, उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता कि क्रिकेट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. बट आई ऑलवेज बिलीव दैट ही इज ऑलवेज अराउंड. वो उधर वो सेट के बगल में ऐसे खड़े होकर के देख रहे हैं सारी चीजें. मुझे भी यही लगता है. ही इज ऑलवेज अराउंड मी. ही इज ओमनीप्रेजेंट. Whenever I talk about cricket, I only fall back to my father's stories. Yeah. He was an avid cricket fan. मतलब वो ऐसे थे, टीवी देख रहे हैं, स्कोरबोर्ड है ना, नहीं, वो खुद अपना बुक और पेन लेंगे, स्कोर लिखेंगे. वो ऐसे थे. और फिर बाद में वो बोलेंगे अच्छा इसमें इतना चाहिए, इसमें इतना चाहिए, इसमें इतना चाहिए. एंड सेम विद टेस्ट क्रिकेट. ही यूज्ड टू वॉच दिस ऑल 5 days. सो ऐसे थे वो. तो उनसे सीखा हूँ मैं ये कि मतलब दिस इज व्हाट आवर फादर्स आर, आर जनरेशन. इनोसेंट जनरेशन थी ना यार. बहुत बचपन में वो न्यूज़पेपर कटिंग्स आती थे, वो शेड्यूल के वैसे काट करके चिपका के रख देते हैं. आज ऑनलाइन मिल जाता है, उस टाइम पे पता नहीं चलता. That's why it's called a religion ना. मतलब ये एक गेम नहीं है इंडिया के लिए. It's a religion. It's it unites the entire country. No other sport in India has taken off like cricket has. Exactly. मतलब कंट्री को यूनाइट करना हो आफ्टर वॉर रहेगा तो क्रिकेट ही Cricket ही रहेगा. रहेगा. Absolutely. पॉलिटिक्स भी यूनाइट नहीं करता जितना क्रिकेट करता है. Yeah. So that's cricket. So we are at the end of the conversation. The whole conversation was, matlab, if we've done this a lot, 16 plus episodes and all of that. But let me tell you, the amount of excitement that I had for this episode, for this shoot, is I can't tell you that मैं और 3 घंटे बैठ के आपसे बात कर सकता हूँ. ये potential रखता हूँ मैं on this topic. So thank you, Shivang, for firstly for being such a sport and being so sweet कि एक मेरे बोलने पे DM पे आपने हाँ बोल दिया था. That just defines कि मैं कितना unemployed हूँ दोस्तों. Yeah, please. Please you can approach him. Please open for collaborations. Crick_inspires guys. So thank you so much for for agreeing to do this. Absolutely. The person who's sitting on my right, he's not a cricket fan. Yeah. But to bring him to this table, it actually requires a special person like you. So thank you for getting him also on board. I would like to add to it. Being a non-sports guy, non-cricket guy, never played, never saw. मतलब इनके साथ कभी कभार वर्ल्ड कप फाइनल साथ में बैठ के देख लिया, वो देख लिया. But sitting here for past 2 hours, talking and listening to your stories, the interesting facts, I felt like I'm a part of it. मैंने आपके थ्रू वो देख लिया मतलब. But it was so interesting, and as he said कि 2 घंटा भी और हुआ तो even I would love to sit and hear the interesting facts and the stories about the Indian cricket team. Because it's not the stories, it's the storyteller who always The way you makes are the weaving difference. Sir, it's all him. I'm just a medium. Absolutely. But it was overall a fantastic episode. Amazing. And second thing, he rightly said, I have never him so much excited where he is only speaking, the guest is not speaking. So 16 episodes में पहली बार होगा जहाँ पे गेस्ट से ज्यादा इसने बात किया रहेगा about cricket. क्या बात है. So it was a fantastic. Yeah, well, there'll be another story where we can meet somewhere outside. My grandfather's name was also Jagdish. Is it? So you are the second Jagdish that I've known. So My father's name was Jagdish and he's a Jagdish. So I have 2 Jagdish in my life. Om Jai Jagdish. Thank you so much for the audience. If I have to say, do watch this episode. Especially for Gen Zs who've not known what the players in our generation used to do and how legendary they are right now, why they are. Please watch this episode and please tell us in comments what more you want to talk about. If you're a cricket fan, please
follow Crick Inspires, Crick_Inspires, by the way. Follow Shivank and get to know some fun aspects of the game. And thank you, Shivank. It's an Karan, absolute you- pleasure being here, guys. Thank you so much. Karan, you want to say I something? already gave my feedback. I need to hear from him कि how he felt coming here. How was Yeah, the we wanna episode? know. Shivang, your feedback. No, I think this is such a great experience. I mean, forget the studio. I think both of you like such great conversationalists. I didn't realize that you were not a sports fan until you said it yourself. Yeah. But एक होता है बोलना और दूसरा होता है सुनना. Listening makes you a better speaker. Absolutely. I feel, and like both of you have been great I'm listeners. not a good listener, but for your information, I speak a lot. He speaks a lot. He listens very less. Yes. Comes from 25 years of experience. No, but I think you guys have been extremely kind, and thank you so much for having me. And It's a pleasure, it's a हमने pleasure. अपना रिकॉर्ड कायम किया है कि फर्स्ट डेब्यूट हाँ, हम लोग ने हमेशा डेब्यूटेंट्स ही लिए हैं. Yes. We'll continue to find Wave off my bottle here. we'll continue to find people who have never been on a podcast. Yeah. ठीक है. Great debut, I would enjoy say. the episode. Please do like, comment and share. Yes. And Yes, like, wait comment, share, for the subscribe. new Like, episode comment, share, and subscribe to Crick Inspires as well. Definitely. Okay, we'll put a link on in the description. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you you so once much, again, guys. Shivank. Thank you, Shivank. Have a Pleasure, great day guys. to all of you, and we'll see you in the next episode. See you.